Hello everyone, welcome to Smart Kira. And first of all, we will welcome our achievers by congratulating them on their amazing achievement that they have got. A lot of you guys who are watching this have a dream of converting the coveted banking PO jobs and the coveted banking clerical jobs. तो ये लोग वो लोग हैं जिन्होंने उसको अचीव किया है और आज इन्होंने हमारे साथ मिलके आपके लिए एक छोटा सा वी विल हैव अ चैट जहां पे हम लोग एक्सप्लोर करेंगे इनकी जर्नी और उससे आप लोगों को समझ में आएगा कि हाउ यू कैन also achieve this and how you can tweak your preparation a little bit here and there जिससे आप लोग आगे जाके यही मुकाम पे अगले बार हमारे साथ मीटिंग कर सकते हैं और पॉडकास्ट कर सकते हैं एंड we will enjoy then also, right? So without further ado, let's start. हम लोग स्टार्ट करेंगे एक छोटा सा इंट्रोडक्शन से। यहाँ पे जो हमारे साथ है उत्सव, अंजलि एंड मंजू नाथ, they have achieved this milestone in their career, first milestone but a milestone. So we will start with a short introduction. ये लोग अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे और देखते हैं फिर कहाँ जाता है हमारा चैट और हमारा अड्डा, राइट? सो लेडीज फर्स्ट, अंजलि। Okay, sir. Sir, my name is Anjali, and I was preparing since January 2023, Okay. and I have got Central Bank of India, Okay. and it was a journey with lots of emotions. And Smart Gira has been always an important part of my journey, and especially their mock drills, Okay, great. because GA was always an issue for me. It is a vast syllabus, so Smart Gira has helped me in that. Good. And Utsav, over Hello, to you. sir. Hi. So I am from Kolkata and I have been, preparing for, banking examinations since 2016. And Okay, I have long been journey. working, yes, sir, I have been working beside in private companies like Amazon, Wipro, and other companies, Concentrix as well. So I had to, work and as well as, prepare for the competitive examinations, which was a very tough thing on my part because I was not able to give much time. But I did not back down. I kept on persevering, and this is my final year. I am turned 30 right now, and this is my final chance. अरे वाह। And happy that I was, able to crack IPS PO for Central Bank of India. The major issue I was facing was with current affairs since the last 9 years, 8 years, sorry. Okay. But this year, before I started preparing, around August 2024, I can say, I had one of my friends suggesting me Smart Kira, where I can go ahead with current affairs mock drill. So that was a game changer, you can say, because I was always being, not able to pass the main examinations because of current affairs. अच्छा, And this time, that thing clicked, and everything has clicked because of that. वाह, चलो ठीक है। Over to you, Thank you. Manjuna. I'm Manjunath Chikeri. I'm from Karnataka, sir. I have been preparing from May 2020. It has been a long journey, but I have Just when gave up four COVID attempts. kicked in, huh? Just when COVID kicked in. Yes, sir, yes, sir. I, Just when COVID kicked in, I started my journey. Actually, in the first attempt only, I was near. I missed around by 2-3 marks. That went through 2-3 years, and now today I have cleared, and I have got Bank of Baroda as clerk, sir. I okay. am very happy, and a Smart Kira, very unique concept. CM mock drill, CM mock drill, and weekly CA PDF has helped me a lot. अच्छा। तो पहले अंजलि, फिर उत्सव, फिर मंजुनाथ ने अपना इंट्रोडक्शन दिया, किस बैंक में उनका सिलेक्शन हुआ, किस रोल पे हुआ, एंड उनका वो कौन से शहर से बिलोंग करते हैं और अपने जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताया। तो हम चाहेंगे कि आप भी बताएं हमें। सर, मेरा नाम शिवम तिवारी है। मैं आगरा उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। ओके ओके। मैं आईपीएस क्लर्क में इंडियन बैंक में सेलेक्ट हुआ सर इस साल। ओके मेरी जर्नी सर अगर मैं बताऊं तो 2021 से स्टार्ट हुई थी। ओके। मैंने तब से बैंक एग्जाम्स देना, मतलब मुझे पता तभी चला था हम्म कि
बैंकिंग एग्जाम्स मतलब किस तरीके से आते हैं, क्या पैटर्न रहता है, क्या सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं तभी से अपनी प्रिपरेशन कर रहा हूँ और काफ़ी टाइम हो गया, काफ़ी फेलियर्स भी मिले, लेकिन अंत में आके IBPS क्लर्क में मैं इंडियन बैंक में सेलेक्ट हो गया एज अ क्लर्क। अरे वाह, चलो, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन एवरीवन। नाउ अब आप लोग, हमारा सबका इंट्रोडक्शन डन है। अच्छा, मैं अपना भी कर दूं कि आई एम रत्नाभा साहा। आई आई एम विद द स्मार्ट कीरा टीम। आप लोगों से मिलके बहुत खुशी हुआ आज। अभी ना हम लोग इसको इस तरह देखते हैं कि ये, जैसे उत्सव ने बोला कि एक फुल टाइम जॉब, मल्टीपल फुल टाइम जॉब्स इन्होंने चेंज करते 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 लास्ट 9 years नाउ, इजंट इट उत्सव? 9 years में Yes, sir, 9 years. वो यहाँ पे पहुंचे। तो ये तो एक चैलेंज था ही। तो उत्सव का जो वो चैलेंज है कि वर्किंग क्राउड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, वो हम सुनेंगे ही सुनेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विथ उत्सव ओनली की why Yes, sir. बैंक, why did you think of बैंक, और वर्किंग के साथ कैसे मैनेज किया टाइमिंग The प्रिपरेशन? बैंक एक्चुअली मेरा, यू कैन से, मतलब मेरा पापा बैंक में काम करते थे. माय फादर वाज इन SBI, सो अच्छा, दैट गिव मी द, you can say, the zeal to just go and get into bank. But given the situation I was facing where I wanted to get on my feet better in a fast way, so I started working for corporates so that I can अच्छा, get my own money and I can spend them on my own. And then it was a challenge. I just had my support. I am married actually, and I have a wife who was, the ओके, most important person who supported me through the entire journey. He was down and out a couple of times where I was very demotivated. I didn't wanted to go ahead, but she was there. She was always there, and she wanted me just, no, you go ahead, you try, keep trying. You have times, at least you have an age till 30. Keep it a try. If we don't succeed, it's not a big problem. But if we do, then we can have a better future. So ग्रेट, I ग्रेट, took it as a option. नो Yes. नो, ऑब्वियसली, वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एंड सो कमिंग अंजलि, अंजलि, व्हाट, हाउ डिड योर यू नो ड्रीम शेप अप? किस तरह से, मतलब बैंक क्यों, कहाँ से आए बैंक का जो आइडिया, और किस तरह से ये हुआ? Sir, actually, after my graduation, I was very clear of giving banking examination. अच्छा, So my dream was very clear from the start, and my journey was very simple because there was nobody who was against, and everybody in my family was supporting me. हम्म, So my journey was smooth, अरे वाह, चलो, and with अच्छी बात है। you all people and and you all people, the journey has become more smoother. अरे वाह, So गुड गुड गुड। मंजुनाथ, कहाँ से आया? वेयर फ्रॉम डिड यू गेट दिस बैंकिंग का कीड़ा? सर पहले से ही भी थोड़ा थोड़ा दिखता था ओके, वो. लास्ट 7 to 8 months I have followed weekly quizzes and weekly PDFs of Smart Kida, sir. Other than that, critical reasons sessions I have followed. But from the means coming from background, when I started, no, sir. After graduation only I have started. ओके, Uh, यू did not have a कंप्लीटेड clear. योर ग्रेजुएशन इन 2020? No, no, sir. 2019 I have completed, sir. 2009? I did not have a clear aim of what to do. So I first tried for CGL, sir. Then I did not know, means it was taking a lot of time, means recruitment and the selection process was slower. Yeah. Nowadays it has sped up, sir. Then I switched to banking, sir, and I started, sir. And previously I have also watched your critical reasoning session in the previous platforms. ओके, 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 अरे वाह, ग्रेट ग्रेट, गुड गुड। सो शिवम, शिवम, आप बताओ, कहाँ से कहाँ से आया बैंकिंग का कीड़ा आपके दिमाग में? कीड़ा नहीं सर, मेरा मतलब कोई था ही नहीं, मन में ही नहीं था कि मैं कभी गवर्नमेंट एग्जाम दूंगा या तैयारी अच्छा, भी करूंगा कभी, क्योंकि वो फिर? कॉन्फिडेंस ही नहीं था अंदर से। मेरी पढ़ाई बहुत मतलब एवरेज, बिलो एवरेज स्टूडेंट था मैं शुरुआत से। लेकिन मैंने अपने दोस्तों से, क्योंकि वो मेरे जो दोस्त हैं वो SSC CGL वगैरह एग्जाम दे रहे थे उस टाइम पे, 2021-22 के टाइम पे, तो मैंने उनसे थोड़ा डिस्कस किया अपने करियर के बारे में, क्योंकि मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन 21 में ही कंप्लीट हुआ था।
तो मैंने उनसे पूछा, मैंने उनसे डिस्कस किया कि क्या मैं आगे जा सकता हूँ गवर्नमेंट एग्जाम में, क्या स्कोप है मेरे लिए, क्या स्कोप है मेरे जैसे बच्चों के लिए। तो मेरे दोस्तों ने मुझे बताया कि आप तू जो है अपनी बैंकिंग की मतलब जा सकता है, क्योंकि उसमें क्या है, जो प्रीलिम्स का जो स्टेज होता है वहाँ पे करंट या जीए जो जनरल अवेयरनेस एसएससी में आता है वो नहीं आता है। तो तू कम से कम अगर पहला स्टेज क्लियर करेगा तो तुझे कॉन्फिडेंस आएगा अपने अंदर, तो वो कॉन्फिडेंस तुझे आगे की जो स्टेज होगी मेंस के लिए, और वो शायद तुझे बेनिफिट दे जाए, वो तेरे अंदर कॉन्फिडेंस मोटिवेशन कुछ भी ला सकता है। तो तू इस तरीके से तैयारी कर। तो मैं वहां से मतलब मुझे लगा कि चलो ठीक है, करके देखते हैं, अगर हो गया तो ठीक है, वरना कोई और स्कोप। फैमिली का सपोर्ट था, फैमिली का सपोर्ट ये इसमें बिल्कुल था सर, पूरे पूरे तरीके से था। बिल्कुल सब तरीके से। मुझे Good. क्लासेस प्रोवाइड करना, मुझे कुछ चाहिए मतलब कोई कोचिंग चाहिए या कोई क्लास चाहिए, लाइब्रेरी की जरूरत है, तो वो सारी चीजें उन्होंने मुझे अच्छी प्रोवाइड बात, कराई। ग्रेट। तो मतलब फुल सपोर्ट था, फैमिली को फुल सपोर्ट। इट वॉज अ गुड एडवाइस उस तरह से देखा जाए तो, मतलब नॉर्मली दोस्त अच्छे एडवाइस नहीं देते हैं मतलब एक्चुअली, पर दिस वाज गुड एडवाइस कि प्री में एक बार अगर क्लियर हो जाएगा, कॉन्फिडेंस आएगा, तो देन यू कैन जी एक्चुअली गो फॉर इट। जी। ये चीज मुझे पूछने भी थी कि आपको टफेस्ट हर्डल क्या लगा? देखिए प्री है, मेंस है, एंड आपका इंटरव्यूज का सेगमेंट रहा, सो व्हाट वाज टफेस्ट फॉर यू? कोई भी बोल सकते हो आप में से, मतलब सर मेरे लिए तो जीए ही था। जी तो मेरे लिए वही था जी लास्ट। मेंस का जी है, ओके ओके। मेरे लिए तो सब मेंस ही था, क्योंकि प्रीलिम्स तो मेरा ये था कि जब क्लियर होते गए तो वो कॉन्फिडेंस आता गया, बिल्डअप होता गया कि चलो ठीक है, प्रीलिम्स तो हो रहा है, एक स्टेज क्लियर हो रही और है। मेंस चैलेंजिंग लग रहा था बस मेंस ये मतलब? था क्योंकि मैं 2021 से प्री क्वालिफाई करता आ रहा हूँ, 21 हाँ, 22 23 मेरे हर साल मैंने प्रीलिम्स क्वालिफाई किए। ऐसा नहीं था मैं कहीं प्रीलिम्स नहीं क्लियर कर पा रहा, मैं हर साल प्रीलिम्स क्लियर हुआ। ओके। तो मेंस का जो हर्डल था वो मुझे थोड़ा सा मतलब माइंड में चल रहा था कि कब ये मतलब होगा, कब क्लियर होगा, वो चीज़ है। आरआरबी पीओ का भी मैं मेंस दिया है, 2 बार क्वालिफाई भी किया, लेकिन इंटरव्यू में मेरे मार्क्स थोड़े कम रहने की वजह से मैं उसमें नहीं हो पाया। तो वो चीज़ थी मेरे माइंड में कि मैं किस तरीके से मेंस में अपना स्कोर ज़्यादा कर सकूं, जिससे कि मैं मतलब सिलेक्शन हो सके, लेकिन वो चीज़ हो नहीं रही थी। इस बार हो गई, लक साथ दे गया कट ऑफ वगैरह सब क्लियर हो गया, तो वो चीज़। एंड मंजुनाथ, कौन सा हर्डल सर विच यू फाउंड टू बी द मोस्ट चैलेंजिंग? सर रीजनिंग और क्वांट में सब इक्वली रहते हैं सर। इंग्लिश और जीए में फर्क आता है। मीन्स एवरीवन स्कोर्स सेम इन रीजनिंग एंड क्वांट। मीन्स इट विल बी समवॉट सेम इन द मेंस। 1920, हाँ, मतलब इट्स नॉट अ हाँ बिग डिफरेंस दैट यू कैन क्रिएट ऑन दोस टू, यू आर सेइंग। हाँ yes sir. And if you are getting good marks in GA, you can take the lead GA and और both English. इंग्लिश, हाँ। हाँ ये एक्यूरेसी भी मैटर करता है सर। अटेम्प्ट ज्यादा नहीं, लेकिन कितना करते हैं ना, 22 25, उतना में भी अच्छे से करना है तो, अच्छे से किया है तो अच्छा होगा सर वो। Now, this is a very good thing that Manjunath said. Tell me whether you guys agree or not. He is saying कि मेंस में what he has noticed कि क्वांट और रीजनिंग तो सबका ही वही 19-20 होता है। बहुत ज्यादा डिफरेंस वो उन दोनों सेगमेंट से नहीं क्रिएट कर सकते जितना इंग्लिश और जीए से। डू यू गाइज आल्सो एग्री दैट दिस यू हैव आल्सो फेस्ड इट इन, यू हैव Yes, आल्सो sir. रियलाइज्ड इट? Yes, sir. This year, this was the thing that I pursued on. I found the same thing that he was saying, that maths and GA, current, I मैथ्स can't एंड do रीजनिंग, good हाँ। in current affairs. Yeah, so maths and reasoning I did like just ओके। like the same people do. The English was my strength, and I worked on it, and I kept on working on it. And this time, both the examinations, like RRB PO as well and IPS PO, both the examinations, English was my strength, and I got around 36 and 37 in both of the examinations. So that created the gap that I was requiring to go ahead with the interview part. एक्चुअली दिस यू गाइस आर एकदम राइट। आई मीन द मेंस में इंग्लिश में सबसे ज्यादा स्कोर ऑन द बेसिस ऑफ द पेपर दैट वी हैव बीन सीइंग फॉर द पास्ट फ्यू इयर्स लाया जा सकता है, एंड देन जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश मिलके वो स्कोर का डिफरेंस शायद क्रिएट कर देता है जो आपको फाइनल स्कोर में एडवांटेज देता है। राइट हाँ राइट, ग्रेट। Absolutely. एंड जीए के बारे में तो आप लोगों ने बताया ही है, थोड़ा सा ये बताइए कि अगर आप एज अ दो दो तरह के लोगों के लिए मैं पूछूंगा, बिकॉज यू हैव गाइज हैव डन इट, बहुत सालों से आप लोग इसको कर रहे हो, तो जीए में ऐसा क्या अलग किया इस बार या लास्ट 2 बार से जो पिछले 3-4 साल 5 साल में नहीं हो पा रहा था?
जीए भी चेंज हुआ है काफी इन 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 द रीसेंट ईयर्स। तो व्हाट डिड यू फाइंड दैट एक बिगिनर के लिए क्या एडवाइस होगी आपको आपकी जीए के रिगार्डिंग? सर मैं सर बता सकता हूँ। हाँ हाँ शिवम बोलिए बोलिए शिवम को बोल। शिवम बहुत देर से चुप है सुन रहा है। नहीं नहीं बोलिए एकदम। व्हाट के व्हाट लिए यू थिंक? जी, क्योंकि सर जो मेरी गलतियां थी वो मुझे लगता है कि हाँ। रिवीजन, हम एक बार तो ये पढ़ लेते हैं, लेकिन उसका जो मल्टीपल टाइम रिवीजन होता है वो आई थिंक मैं शुरुआत में बहुत लैग कर रहा था, क्योंकि एक बार पढ़ लिया बस, फिर लगता था कि शायद हो गया मेरा चाहिए, लेकिन इतना ज़रूरी नहीं होता, हमें बार बार उसको रिवाइज करना होता है, रिवाइज करना होता है, क्योंकि होता क्या है कि कभी कभी हमें लगता है कि हमें इसका आंसर आता है, लेकिन जब हम एग्जामिनेशन में बैठते हैं तो वो एकदम से हमारा माइंड क्लिक ही नहीं कर पाता, वहाँ पे हमको लगता है ये भी ऑप्शन सही है, ये भी ऑप्शन सही है, ये भी मैंने कहीं पढ़ रखा है। लेकिन जब हम मल्टीपल टाइम उसी चीज को रिवाइज करते रहेंगे, रिवाइज करते रहेंगे, रिवाइज करते रहेंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारे माइंड में फिट यू हो यू जाएगा। यू से की इज रिवीजन। जी जी सर। में मतलब बार बार पढ़ो rather देन ट्राइंग टू मग अप इन वन गो। बार सर बार रीडिंग मतलब एक साथ मग अप तो होगा नहीं। इसमें बैठने बहुत से नहीं टाइम होगा सर बर्बाद वो भी होता है, बहुत बच्चे इसमें शायद टाइम बर्बाद भी करते हैं, मुझे पता नहीं आप लोगों ने कभी किया है कि नहीं, बट जी बहुत a lot of स्टूडेंट्स डू दैट। अंजलि आप कुछ कह रहे थे, हाँ क्या बोल रहे थे? सर मेरे ख्याल से रिवीजन भी इम्पोर्टेंट है, और साथ में इतना वो वास्ट हो जाता है डेली का कि पढ़ा ही नहीं जाता है। तो जो स्मार्ट किरा के स्मार्ट पॉइंट्स हैं हम्म। वो मैं तो समरी मतलब डायरेक्टली वही छोटा पढ़ती स्मार्ट। हूँ। हाँ हाँ दिन का छोटे पॉइंट्स जो स्मार्ट हाँ पॉइंट्स में देते हैं वो दैट इज। अच्छा और एक चीज क्या बोलोगे जीए में कि लोग बहुत फियर ऑफ मिसिंग आउट में रहते हैं, उतना फियर ऑफ मिसिंग आउट भी करना चाहिए अगर रेगुलरली पढ़ रहे हो तो? सर सर, सर। या अंजलि क्या बोल रहे थे? सर अगर रेगुलरली पढ़ रहे हैं तो ज्यादा कुछ छूटने की उम्मीद है नहीं, क्योंकि वैसे भी स्मार्ट गिरा सारा कुछ प्रोवाइड करता ही है, और वैसे भी इतना वास्ट है कि सारा कुछ कवर भी नहीं कर सकते हैं। एग्जैक्टली तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कवर कर राइट। रहे हैं उसको मैक्सिमम रिवाइज करें, जिससे कि उससे हम मैक्सिमम आउटपुट दे नहीं सकें। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मंजुनाथ डू यू हैव एनी अदर सर ऑब्जर्वेशन इन दिस यू? सर प्रॉपर एनालिसिस ऑफ द एग्जाम सर, मीन्स आरआरबी के कर रहे हैं तो 7 to 8 months पढ़ना पड़ेगा सर। ओके। क्वेश्चंस आर फ्रॉम द लास्ट 7 to 8 months सर। ये आईबीपीएस और एसबीआई का ज्यादा से ज्यादा 4 और 5 महीने तक आएगा। वो एनालिसिस बहुत प्रॉपरली करना चाहिए। अपर होना। मोर ऑफ द क्वेश्चंस ये तो है सर, लास्ट फ्रॉम 2 3 years आई हैव ऑब्जर्व आईबीपीएस क्लर्क में तो लास्ट 3 या 4 महीने का रहता है, वो प्रॉपरली करने का सर। और ये एक और दो दो ही रिसोर्सेस पढ़ने का, वो बार बार रिविजन करने का। हम क्या करते हैं ना, मीन्स कलेक्ट करते मोस्ट ऑफ हैं द रिसोर्सेज, कलेक्ट करते रहते हाँ हैं, बिगिनर पीडीएफ कलेक्ट क्या करते हैं। कर ओके। हाँ कलेक्ट करने में ही टाइम वी बिकम जाता है सर। कलेक्टर्स। यस सर, just follow 1 or 2 resources, do proper वेरी revision, and it will come at means minimum you will score around 20 marks you can score with a proper गुड। revision of 3 4 months वेरी गुड एडवाइस। you can मतलब score sir। दोस्तों जो आप लोग ये सुन रहे हो, यू नो दीज दीज आर एक्चुअली वेरी गुड एडवाइस कि यू नो बी रेगुलर एंड रिवीजन रिवाइज एंड डोंट गो ऑन कलेक्टिंग फ्रॉम हियर एंड देयर। आप कुछ मिस आउट नहीं करोगे। एक या दो रिसोर्सेस को अगर आप ठीक से करोगे उसी से आपका बहुत सारा काम वैसे ही हो जाएगा। और ये मत सोचो कि आपको सब कुछ आ जाएगा। नन ऑफ देम, ऑल ऑफ देम हैव क्लियर्ड, नन ऑफ देम आर सेइंग कि फुल मार्क्स आएगा जी। एंड दैट्स एक्चुअली नॉट पॉसिबल। as Manjunath said कि यही करेंगे तो ही 2021 आ जाएगा, which is more than enough to give you an advantageous push to clear the exam. Right, right. अच्छा क्वांट इंग्लिश और रीजनिंग में प्री और मेंस में कुछ डिफरेंस आप लोगों को दिखता है, या आप लोगों ने अपने लिए कुछ अलग किया है? कुछ चीजें उत्सव क्या बोलोगे आप? सर मैं जो इतना साल से मेरा जो एक्सपीरियंस था उसमें मैंने हमेशा यही देखा है कि मेंस हमेशा टफ रहता है, प्रीलिम्स से इट्स ऑलवेज लेंदी, इट्स ऑलवेज लाइक कॉम्प्लिकेटेड। सो मैंने जो इस साल सबसे स्पेशली किया था, मैंने प्रीलिम्स को छुआ ही नहीं, मैंने सीधा सारा मेंस का सॉल्व किया। अच्छा। मैंने पहले से दिन से बैठ के सिर्फ मेंस का ही प्रिपरेशन कर रहा हूँ कि मुझे मेंस ही करना है। प्रीलिम्स तो इतना साल से कर रहा हूँ तो हो ही जाएगा, तो इससे मेरे को टेंशन नहीं, लेकिन मेरे को मेंस क्लियर करना है तो मेरे को सिर्फ मेंस पे फोकस है।
तो मैंने जो अपने दोस्त को भी बताया था, वो इस साल स्टार्ट किया है प्रिपरेशन करना, उसका पहला प्रीलिम्स भी निकल गया, तो मैंने उसको वही बताया था कि तुम मेंस का ही प्रिपरेशन स्टार्ट करो, क्योंकि उसमें तुमको जो इंग्लिश आएगा, जो मैथ्स आएगा, जो रीजनिंग आएगा, घूम फिर के उसका ही थोड़ा इजियर वर्जन प्रीलिम्स में आता है, तो तुमको हो जाएगा। Yeah. यू हैव टू जस्ट फोकस ऑन मेंस। तो उसका जब प्रीलिम्स निकला है, उसका अच्छे मार्क्स से निकला, कुछ अराउंड 80-85 मिला उसको। तो वो भी मेरे को वही बोला कि हाँ, यही सबसे अच्छा ऑप्शन है कि करो तो डायरेक्ट मेंस का प्रिपरेशन करो, क्योंकि प्रीलिम्स में क्या होता है, वही चीजें आता है थोड़ा इजियर लेवल पे, लेकिन थोड़ा कम कैलकुलेटिव और आता है, तो वो एक्चुअली आपके ऊपर कॉन्सेप्ट है। थोड़ी ना चेंज होते प्री और मेंस के। एग्जैक्टली एक चीज सिर्फ इसमें, टफनेस हो जाता है। एकदम एक चीज इसमें मैं मतलब स्टूडेंट्स को भी बोलता हूँ, और अभी भी शायद आप लोग भी एग्री करोगे, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि यार आप कोई कॉन्सेप्ट कर रहे हो, वो प्री के लिए अलग और मेंस के लिए अलग नहीं होने वाला है, राइट? तो बच्चे हमारे पास आते हैं कि सर प्री की तैयारी है ना, मेंस की तैयारी, इट्स लाइक कि यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दैट टॉपिक, फॉर दैट सब्जेक्ट, राइट? अब उसमें डिफिकल्टी लेवल आप बढ़ाते जाते हो, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन ये जो प्री की अलग से पहले तैयारी कर लें और फिर बाद में 3 हफ्ते में मेंस की तैयारी, दिस इज हो ही नहीं नॉट सकता। समथिंग दैट एवर वर्क्स आउट, आई थिंक सो, एंड आई दैट्स व्हाट आई गाइड। आप लोगों का क्या ओपिनियन है? ऐसा बिल्कुल एब्सोल्युटली सही, सेम। बिल्कुल सही। Yes, sir. That Same. doesn't work out. और जितना मेंस की गैप कम होता जा रहा है, वो उतना और ज्यादा कॉम्प्लिकेट मुश्किल हो होता रहा है। रहेगा, राइट? चलिए, एंड एनीवन एल्स जो क्वांट इंग्लिश रीजनिंग में कुछ आप लोग बोलना चाहोगे? मंजुनाथ, अंजलि, हाँ सर। शिवम, हाँ बोलिए मंजुनाथ। सर रीजनिंग में सर ज्यादा से ज्यादा मीन्स मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स मीन्स मेरा सजेशन है सर, प्रॉपरली वो पजल को छोड़ के मीन्स आई एम फॉरगेटिंग पजल, Critical. सिंगल। पजल, सीआर एंड क्रिटिकल हाँ रीजनिंग एंड मिसलेनस, ये 3 तो आते हैं। हाँ मिस हाँ सर, मिसलेनियस एंड क्रिटिकल रीजनिंग को ज्यादा फोकस करे तो सर 15 to 20 मार्क्स तो वही रहता है सर। एक तो पजल आना ही है, वो तो मीन्स मीडियम टू इजी टू मॉडरेट रहता, वो करना है सर। और सब मिसलेनियस करके क्रिटिकल रीजनिंग पढ़ना ही है सर। क्रिटिकल रीजनिंग Critical इज अ reasoning गेम is चेंजर। aligned to your reading comprehension also. So it actually यस सर, helps यस। you in parajumbers, reading comprehension everywhere. यस वेरी सर, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। और ये पजल के चक्कर में बहुत सारा टाइम हम बहुत लोग सर। पे डाल देते हैं, हाँ एंड सर, एंड अप वेस्टिंग टाइम इन द एग्जाम आल्सो, इन द एग्जाम यस आल्सो। सर। वे एंड अब हाँ we बोलिए। can score easily around 25 marks, sir. अच्छा, Uh, दैट्स it योर will, टेक। and one puzzle will for surely we will click that. So it is better to follow this strategy. And if we consider puzzles, I personally believe stacking is the most easier part. अच्छा। Instead of going for circle, this stacking will click Yes, at least in once or all. It हम्म। always clicks. But when we go for circle, sitting arrangement, this has something that will make you feel okay, this one can go there. Stacking helps a lot. Stacking has always helped me. This is advice from those who have faced just now and have found out some solution. Great, great, man. शिवम, अंजलि, आप लोग क्वांट इंग्लिश रीजनिंग में कुछ आप लोगों का ओपिनियन? नहीं सर, The एक reasoning. एडवाइस। नहीं, आप ठीक है, मैं बोल दूं कि बैटरी जाने वाला थोड़ा, मैं बोल के मैं चला जाता हूँ। ओके, ओके, हाँ बोलिए, बोलिए। एडवाइस एडवाइस मेरा यही रहेगा, कोई सेक्शन वगैरह को लेके नहीं है। एक सिंपल सी जो मैंने खुद इस साल फॉलो किया, वो ये था सर कि जो हमारे एग्जाम्स होते हैं, अब मैं 21, 22, 23 से देखता हुआ आ रहा हूँ, वो रिपीटेडली हर महीने एक एग्जाम होता है हमारा। अगस्त में अगर आरआरबी पीयू का प्री है तो सितंबर में उसका मेंस होगा, लेकिन इसी बीच आईबीपीएस क्लर्क का भी प्री आ जाता है। फिर उसके बाद मेंस होता है आईबीपीएस क्लर्क का, तो हमको उतना टाइम नहीं मिल पाता, क्योंकि हम ना, ऐसा नहीं है कि हमसे कोई गलती नहीं होती, हर एग्जाम में हमसे कुछ ना कुछ गलती हो जाती है। तो मुझे ये लग रहा था कि यार हमारी जो गलती हो रही है एग्जाम में, तो हम उसको उसी वक्त हम सुधार नहीं कर पा रहे। हमको फिर से वो अगले साल के लिए फिर से वो 6 महीने का साइकिल हमको ना वो चीज़ फेस करनी पड़ती है। तो इस साल सर मैंने क्या किया कि मैंने अपने आप को पहले ही ये माइंड मेकअप कर लिया कि मैं इस साल आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ एग्जाम दूंगा ही नहीं, क्योंकि मुझे ये रियलाइजेशन हो गया 3 साल की प्रिपरेशन से कि ये एग्जाम अभी शायद मुझे ऐसा लगता है कि मैं क्लियर नहीं कर सकता हूँ। तो रियलाइजेशन भी मतलब एक्सेप्ट करना, स्वीकारना बहुत बड़ी चीज़ होती है कि अभी मुझसे नहीं हो रहा, शायद आगे जाके हो जाए, लेकिन अभी मुझसे नहीं हो रहा। तो ओके। मैंने सिर्फ इस साल शुरुआत से ही 3 एग्जाम पर फोकस किया था, आरआरबी पीओ, आईबीपीएस क्लर्क और एसबीआई क्लर्क।
तो इससे होता क्या कि मेरा जो माइंड था वो आईबीपीएस पी और एसबीआई पी से फ्री हो गया था कि मुझे उनकी तरफ देखना ही नहीं है। मुझे पहले अपना जॉब सिक्योर करना, पहले एक चीज मतलब मैं ले लूं, उसके बाद मेरे पास एज है, मैं आगे भी ट्राई कर लूंगा एसबीआई पीओ के लिए, आईबीपीएस पीओ के लिए। लेकिन पहली चीज है कि मैं एक जॉब सिक्योर कर लूं। तो उस चीज से मैं फ्री हो गया। तो अगर मेरी कोई गलती होती है आरआरबी पीओ में, तो मैं उसको सुधार कर लेता। मेरे पास वो दिमाग पे हेडेक नहीं रहता कि मुझे आईबीपीएस पीओ का प्री भी देना है, हम्म मेंस भी देना है, या एसबीआई पीओ का यू प्री। तो सेइंग वो जो लिमिटेड एग्जाम के लिए करेंगे तो थोड़ा सा टाइम जी जी अपने उस तरह से स्ट्रेटेजाइज किया, ठीक जी है। जी सर, तो शायद वो वर्क कर गया, तो इसलिए ये चीज हो गया क्लियर। ठीक, तो चलिए, मैं सर जा सकता हूँ चलिए क्योंकि वो चलिए, वेब ओके, एग्जाम है हमारा। बाय बाय शिवम, थैंक्स फॉर बहुत ज्वाइनिंग अच्छा लगा एंड सर, काफी ऑल अच्छा। द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू जुड़े सर। रहिएगा हम लोगों से, और फिर मिलेंगे। बिल्कुल सर। बिल्कुल सर, अगली बार बिल्कुल पीओ सर, के बहुत सिलेक्शन में मिलेंगे। बिल्कुल सर, एसबीआई पीओ जरूर के सर, जरूर सिलेक्शन में, हाँ। जरूर सर, जरूर सर, जरूर सर। सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन, उत्सव, मंजू, अंजलि, सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है सर, थैंक तो मैं चलता हूँ। बाय थैंक सर, यू, बाय। सेम टू यू। थैंक यू, सेम टू यू। यू। सो अंजलि, आप कह रहे थे कि हाँ, क्वांट इंग्लिश रीजनिंग में आप कुछ कह रहे थे। रीजनिंग में मुझे पर्सनली पिछले साल मेरा कोई भी मतलब प्री भी क्लियर नहीं हुआ था। और इस साल ये मेरा पहला ही एग्जाम, मैंने आरआरबी का दिया ही नहीं था। ओके, और मुझे पीओ ही बनना था, तो मैं क्लर्क के एग्जाम ही नहीं देती थी। ओके, तो ये मेरा पहला एग्जाम था। और रीजनिंग में मुझे इस बार मैंने क्रिटिकल रीजनिंग पे थोड़ा ज्यादा फोकस किया। ग्रेट। क्योंकि पिछले साल सिर्फ पजल्स पजल्स ही करते रह गए थे, और वहां पे जाके इतने पजल्स बनते नहीं है। और अगर थोड़ा सा भी अटक जाते हैं तो वो एकदम से पैनिक क्रिएट हो जाता है। तो हम्म इस वजह से इस बार मैंने क्रिटिकल रीजनिंग पे ज्यादा फोकस किया, और उसकी वजह से मेरे रीजनिंग में अच्छे मार्क्स आए थे। अच्छी बात, अच्छी बात। और उसने मुझे इंग्लिश में भी काफी हेल्प की। हाँ, ऑब्वियसली, एकदम एकदम, एंड दैट्स अ वेरी गुड थिंग कि आप लोगों ने भी उसकी पुष्टि कर दी, जो मैं बच्चों से बार बार बोलता हूँ, ताकि व्हाट हैपेंस इज कि बच्चों को लगता है कि सर को तो आता ही है, इसीलिए सर बोल देते हैं, राइट। हाँ सर। देन व्हेन यू गाइस हैव गॉन थ्रू इट एंड देन रिकन्फर्म इट, देन दे स्टार्ट थिंकिंग कि नहीं 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 यार, सर जो बोल रहे हैं वो करना पड़ेगा, क्रिटिकल रीजनिंग से इंग्लिश में हेल्प होगी। एंड ऑब्वियसली वो 8-10 नंबर तो डायरेक्टली लिंक्ड है ही है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो इंटरव्यू का एक्सपीरियंस क्या रहा इन द एंडिंग स्टेजेस ऑफ आवर मीटिंग? तो इंटरव्यू का एक्सपीरियंस क्या रहा? कुछ आप लोगों को अलग फील हुआ उसमें? उत्सव का तो बहुत सारे जॉब इंटरव्यू के एक्सपीरियंस थे, उससे क्या अलग, क्या कुछ कंपैरिजन दे सकते हो क्या? सर कॉन्फिडेंस मिला मुझे, ये मैं बोल सकता हूँ कि मैंने इतना सारा इंटरव्यूज दिया इससे पहले, लाइक प्राइवेट कंपनीज में, तो मेरे को वो हाँ, कॉन्फिडेंस था कि मैं बोल पाऊंगा। थोड़ा डिफरेंट था क्योंकि यहाँ पे सामने 5-6 जन बैठे थे, तो थोड़ा मेरे को लग रहा था कि मैं सबको ठीक से आंसर कर पाऊंगा कि नहीं, बट विद द फ्लो इट वेंट वेल। एंड दोनों इंटरव्यूज मेरे बहुत अच्छे गए थे। दे बेसिकली आस्क्ड मी फ्रॉम माय ओन लाइक स्ट्रीम, माय कॉमर्स स्ट्रीम, दे वर आस्किंग मी ओके, फ्रॉम बिकम दैट। तो आंसर्स तो मेरे को मालूम थे ही, और अच्छा इंटरव्यू भी गया था। और मैंने जो एक चीज नोटिस किया है, मैं खुद भी स्ट्रेस्ड आउट था बहुत ज्यादा इंटरव्यू के पहले। लेकिन जब मैं इंटरव्यू में गया और उनसे जब बात किया, तो मेरे को वही समझ में आया जो मेरे को पहले से बताया जा रहा था, कि वहाँ पे कोई मॉन्स्टर्स तो बैठे नहीं, वो लोग सब आपको क्वेश्चन ही पूछेंगे, तो इतना डरने की जरूरत नहीं है। तो वो लोग बहुत अच्छे से बिहेव किया, हम भी अच्छे से आंसर किए, एंड आई वॉज नॉट अफ्रेड, आई वॉज स्माइलिंग, एंड दैट हेल्प मी। एंड both the marks were pretty good. अरे वाह, Got a above 80, so that gave me a very ओह good वाह, momentum boost as well. ग्रेट, गुड। अभी उम्मीद कर रहा हूँ एसबीआई पीओ का इंटरव्यू में जाके भी वही अरे यू नो एकदम एकदम, जाके निकलेगा। एकदम होगा। जी मंजुना, इंटरव्यू का? सर मीन्स मेरा आईबीपीएस पीओ नहीं होता सर, हम्म, आरआरबी पीओ किया कर, था सर। इंटरव्यू उतना अच्छा नहीं हुआ। अच्छा। मेरा 65 to 70 मार्क्स मिला था मेरे को। और अगले इंटरव्यू के उतना लिए आपको क्या लर्निंग मिला उससे? सर डरना नहीं है, आराम से जाने का है सर। वो इंटरेक्शन जैसा रहता है, कुछ ज्यादा टेंशन और लोड भी नहीं इस लेने का बार सर। ज्यादा डर गए थे क्या इस वाले में, आरआरबीपीओ वाले में? सर ऐसा नहीं है, मैं ज्यादा से ज्यादा किया था, बता भी दिया था। वो पता नहीं मार्क्स कैसे नहीं आए, लेकिन अच्छा दिया, अच्छा गया बॉडी था सर, लैंग्वेज उतना में अच्छा वो, मार्क्स नहीं हाँ आए। हाँ, ठीक। हाँ, ठीक वो है। होगा सर। एंड अंजलि, व्हाट डू यू थिंक कि कुछ
वैसे और कुछ भी एनी एडवाइस दैट वन एडवाइस अगर आप लोगों को देना है जो स्टार्टिंग कर रहे हैं कि बिगिनर एंड वर्क एक्स के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ, उत्सव वाज वर्किंग। आप में से कोई वर्किंग करते वक्त प्रिपेयर कर रहे थे क्या? मंजुनाथ, आप वर्किंग तो नहीं कर रहे थे। नहीं। तो ये क्या बिगिनर्स के लिए क्या आप एडवाइस दोगे, वन एडवाइस इफ यू वांट टू गिव? सर प्रॉपर एनालाइज करो सर सब ये सब्जेक्ट का। ओके। और इफ यू हैव मींस रिसोर्सेस यू गो फॉर मेंटर. Mentor can reduce your time, sir, and that can help you uh, get selection early as possible. ओके ओके ओके। अंजलि, एक एडवाइस अगर आपको देना हो जो स्टार्ट कर रहे हैं बिगिनर, यू डिडंट वर्क ना जब आप प्रिपेयर कर रहे थे, उस दौरान आपने हाँ वर्किंग तो नहीं किया। सो अगर बिगिनर्स के लिए कोई एडवाइस देना है तो क्या होगा, वो किस तरह से? सर पहले तो पैनिक मत करें और अपना एक पर्टिकुलर सोर्स एक चीज को पकड़ लें और उसी डायरेक्शन में करें। जैसे कि मुझसे काफी लोगों ने सजेस्ट किया कि बैंक के साथ आप एसएससी भी दे दो और दूसरे एग्जाम्स भी फोकस करो, तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि अगर आप एक ही चीज पे फोकस करते हो तो वो जल्दी क्लियर होती है, ऐसा मेरा मानना है। सो इस वजह से आई थिंक कि एक चीज को फोकस करो और उसी में अपना पूरा 100% दो। इसीलिए आपने सिर्फ पीओ पे ही फोकस किया। चलो हाँ सर, आप कह सकते चलो। हैं। और उत्सव, बता, आपसे तो मैं दोनों ही पूछूंगा, बिगिनर और वर्क एक्स, इन दोनों के लिए एडवाइस। सर मैं अगर बिगिनर्स की बात करूं तो जैसे मैं सबको बोलता आ रहा हूं अभी से, जो भी मेरे को पूछ रहा है एग्जाम के बारे में, तो मैं उसको वही बता रहा हूं कि पहले तो है तुम वही करो, मतलब मेंस का पेपर दो, लेकिन ऐसा नहीं कि तुम बैठो एग्जाम देने के लिए, तुम उसको सबमिट कर दो। तुम टेस्ट मंगाओ और सबमिट करो, फिर उसको सॉल्व करो बैठ के। तो पहला तुमको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ ये मेरे से सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, उसका सोल्यूशन निकालो, फिर जाके उसको वापस दो। डोंट गो फॉर द मार्क्स। मॉक्स में तुम्हारा मार्क्स तुमको जॉब नहीं दिलाएगा। वेरी गुड, मॉक्स में वेरी गुड। तुम्हारा काम ही है कि तुमको एनालाइज करना है खुद को, और मॉक्स, क्या मेरा टेकिंग नेगेटिव्स है। मॉक्स एंड एनालाइजिंग मॉक्स इज व्हाट यू आर सेइंग। एग्जैक्टली वेरी गुड, वेरी पहले मॉक सबमिट करके उसको ठीक से करो, उसका पूरा आंसर्स देख लो कैसे करना है। ऐसा नहीं कि खुद से चोरी करके कोई तो फायदा है नहीं। करो ठीक से, फिर उसको जाके वापस से करो। ऐसा तो नहीं है कि मॉक्स एक बार ही आप दे सकते हैं, मॉक्स आप हजारों बार दे सकते हैं। उसका मार्क्स देख के आपको कोई भी फायदा नहीं होगा, उसका सिर्फ आपको सॉल्व करना है। और एक ही चीज आप जब बार बार सॉल्व करेंगे ना, तो जब आप एग्जाम में जाएंगे तो उसका बहुत इफेक्ट आता है। आपको लगेगा कि नहीं मेरे को ये आएगा, मेरे को मालूम है कॉन्फिडेंस इसको। ही अलग हो जाता है। ये तो सबके लिए एग्जैक्टली रेलेवेंट है, बिगिनर हो जो 5 साल से दे रहा हो, सबके लिए ये बहुत बहुत ही। यही सर सबसे बड़ी, मतलब मेरे इस चांस में इस साल जो, मतलब पहले साल में कुछ भी नहीं लग रहा है, इस साल में हर एक लग रहा है, तो मेरे को यही समझ में आया कि हाँ यही सही मेरे लिए अच्छे, यही अच्छा था कि तुम मेंस का सब पेपर, मतलब मॉक्स में मैंने देखा है बहुत जन कंपटीशन लगाते हैं कि नहीं मेरे को मॉक्स में भी 190 लाना है, 170 लाना है, विच इज दैट इज नॉट ऑफ एनी यूज। जो यूज है नौकरी में तुम क्या कर रहे हो, जब जाके मेंस में पेपर में क्या लिख रहे हो। तो मैं वही फोकस किया मैंने। आप चेक कर, मेरा आप चेक करा सकता तो मैं दिखा था आपको, मेरा सारा मॉक सबमिटेड है, सब 0 बने। अरे इसको वाह, मेरे पे गुड कोई गुड। इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को मैंने वही पेपर बार बार बैठ के सॉल्व किया, बार बार बैठ के सॉल्व किया उसको, तो मेरे पे वही स्पीड आ गया। स्पीड ही इंपॉर्टेंट है सर इसमें। मॉक्स, बाकी आप दोनों को मॉक्स का कैसा क्या रहा? ये अच्छा पॉइंट उठाया, हमारे डिस्कशन में मॉक्स का रह गया था। जैसे आप लोगों ने भी स्मार्ट किरा के मॉक्स लिए थे और करे थे, तो मॉक्स का क्या रोल रहा आपके उसमें? सर मॉक सर पे मेरी तो पर्सनली स्पीड पे, प्री में स्पीड पे काफी हेल्प किया मॉक्स ने। एंड अगर मेंस की बात करें तो मेंस मैं भी पहले सबमिट करके ही सॉल्व करने की कोशिश करती थी, बट मेंस के थोड़ा पहले मैंने मतलब 3 घंटे प्रॉपर देना स्टार्ट बैठ किया, के, जिससे कि हाँ। एक आप मेंटली भी प्रिपेयर हो सको कि 3 घंटे आपको बैठना है और सॉल्व करना है पूरा ये पेपर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने बोला कि मॉक्स को मतलब टेस्ट के तरह लीजिए, हाँ बिकॉज वो मेंटल स्टेट नहीं तो नहीं आएगा, राइट? अच्छा। ओके। एंड मंजुनाथ, मॉक्स हाउ? सर if you are a beginner sir, starting दो मीन्स पाँच 4 या 5 सबमिट करके दे सकते हैं सर.
बाद में सर थोड़ा प्रैक्टिस हुआ है ना, प्रैक्टिस वीडियो थ्रू करते हैं और यूट्यूब में भी क्लासेस लेते हैं ना सर। वो होने के बाद ना सर मॉक चालू करना ही चाहिए सर। वो टाइम फ्रेम में कंप्लीट करना भी, बट डोंट वो यू थिंक कि वो जो स्किल भी आना चाहिए। सबमिट करके लेने का क्या पर्पस होगा? ओनली प्रैक्टिस, वो तो टॉपिक क्वेश्चंस भी है। रैदर यू शुड, हाँ सर, अगर स्टार्टिंग से। ऑप्शन हो कि सारे मॉक हाँ आप टाइम लिमिट में दो और फिर हाँ एनालाइज सर। करो, जैसे उत्सव ने हाँ बोला। वुडंट दैट बी बेटर उस तरह से? हाँ, ये हाँ, बिकॉज ये सर ये आपको 10 बार मेंटली भी आप प्रिपेयर करेगा। आप ये देखो ना, 10 बार या 20 बार जब आप टाइम लिमिट के अंदर घुसते हो, पर फिर वो हाँ सर। गलतियां करते हो जो जस्ट बिकॉज यू आर इन द टाइम प्रेशर यू आर डूइंग इट। ऐसा नहीं कि सर, बहुत बार जैसे जब सबमिट कर देते हो ना मॉक, तब आपको लगता है कि यार मेरे को तो 50 क्वेश्चन आते हैं। वही मॉक जब आप देने जाते हो तब देखता है अरे मुझे तो 30 क्वेश्चन आते हैं। एंड दैट द ओनली हम्म, डिफरेंस इज यू आर सिटिंग इन अ टाइम प्रेशर, टाइम। राइट? ओके, सो ये दिस इज व्हाट आई फील कि अगर आपने 5 मॉक दिए टाइम लिमिट के अंदर, 10 मॉक दोगे तो उसका इफेक्ट और एनालाइज करना है, जैसे ऑब्वियसली बात है एनालाइज की क्या गलतियां हो रही है, दैट माइट एक्सपीडिट योर सक्सेस परसेंटेज। जल्दी जल्दी कर देगा शायद आपका आपका वो। क्योंकि बहुत लोग सर ये करते हैं मॉक को सिर्फ प्रैक्टिस के लिए यूज करते हैं, बट दैट इज वेस्ट ऑफ मॉक। वो तो टॉपिक मोरलेस। क्वेश्चन पीडीएफ कहीं से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं ना। सर मॉक से पिक भी नहीं कर सकते सर। मीन्स एग्जैक्ट, सब में सबमिट किया था ना सर, स्किल नहीं आता वो पिक स्किल नहीं आता है, इजी। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट। नहीं 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 सर देख, एक्चुअली जब हाँ हाँ। मॉक्स में हम लोग पैनिक कर जाते हैं जब एक्चुअल मॉक दे रहे होते हैं, और जब सबमिट करके देते हैं तो वही लगता है कि हाँ ये तो और आता ही है ये। वो पैनिक जरूरी है। हाँ, एक्चुअल एग्जाम्स के लिए वो वो पैनिक पैनिक ही जरूर। बचाता है आगे जाके एग्जाम में पैनिक होने से, नहीं? यस सर, यस। Right. नहीं, ये तो होता है। आई फुल्ली एग्री, एंड दैट्स व्हाई दिस होल प्रोसेस ऑफ मॉक और इतने सारे मॉक देना भी अच्छा रहता है। नहीं, बहुत बहुत अच्छा। आई एंजॉयड द चैट। एनीथिंग एनीथिंग दैट यू वुड वांट टू शेयर, और भी कुछ भी जो रह गया है हमारे डिस्कशन में जो? सर हाँ बोलिए। सर इंग्लिश का भी है सर। इंग्लिश नो सर, थोड़ा ज्यादा टाइम देना लेगा चाहिए। सर वो इम्प्रूव करने के लिए। क्या है ना सर, एक बार ग्रामर पढ़ लिया तो ज्यादा से ज्यादा रीडिंग करना है सर। मेरा सजेशन ये है सर, कुछ भी पढ़ो। ये मंथ और वीक कैसा आपका टाइम रहता है ना, वेराइड उसमें जेनरिक रीडिंग आप बोल रहे हो? वेराइड हाँ जेनरिक सर। रीडिंग, जन है ना? यस सर। वो क्या है ना सर, वो पैसेज में बहुत हेल्प आएगा सर, और ऑटोमेटिकली इंग्लिश इंप्रूव होगा सर, और अच्छे भी आएगा सर मार्क्स। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है सर वो। एक्चुअली एक्चुअली करेक्ट। आई मीन रीडिंग इज द बेस ऑफ इंग्लिश। मतलब जितना भी ग्रामर पढ़ लो, जितना भी वोकैब पढ़ लो, रीडिंग नहीं करोगे तो क्लियर नहीं करोगे। रीडिंग कर लिया ग्रामर वोकैब में, इवन इफ यू हैव दी, मतलब बेसिक से थोड़ा सा ऊपर भी चले जाओगे तो भी आप पूरे इंग्लिश के स्कोर को ले जा सकते हो, खास करके जब मेंस की बात आती है उसमें। करेक्ट करेक्ट, एक्चुअली एग्री। एनीथिंग एल्स उत्सव, अंजलि, जो हमसे मिस हो गया हो? नहीं, ऐसा कुछ तो मिस तो नहीं, मगर एक मैथ्स का ट्रिक मैं बताना चाहूंगा। लाइक हाँ, आई यूज दिस पर्सनली। ओके। जब भी मैं ट्रैवल करता हूँ कहीं पे भी, लाइक मैं ऑफिस जा रहा हूँ या फिर मैं घर से कहीं पे भी निकला हूँ, अगर मेरे को लग रहा है कि मेरा माइंड अभी रिलैक्स्ड है, कुछ सोचने का जरूरत नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, गाड़ी का नंबर जो है होता है ना, लाइक 4 डिजिट हाँ नंबर, मैं हाँ उसको हाँ। मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस माइनस ये सब करते रहता हूँ। जो एक गाड़ी दिख गया उसका नंबर मैं सोच रहा था, कभी मेरे को दिख गया कि 8345 का कुछ है, तो मैं उसको हाँ। 83 into 40, मैं टफेस्ट का सोचता हूँ, ताकि मेरे को वो ट्रिक्स में एग्जाम पे ना उसको मेरे को सोचना ना पड़े। तो जैसे वही बात चलता रहता है, मैं फोकस करता हूँ कि मेरे को लोग चाहिए क्या, मेरे को जॉब चाहिए। तो मैं जब निकलता हूँ तो मेरे को दिमाग में वही घूमता है कि चलो इसमें से अभी ये निकालते, उसमें से वही निकालते। अब परसिवियर करेंगे तो अभी चल जा पाएंगे आगे। ग्रेट ग्रेट, मस्त। अभी बस 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 में जा रहे हो, गाड़ी में जा रहे हो, मतलब गाड़ी खुद नहीं चला रहे हो? अगर पैसेंजर गाड़ी खुद चलाते वक्त मत करना। पैसेंजर सीट नो, में दैट्स बैठ नॉट राइट, जाओ। या दैट्स नॉट एडवाइजेबल, बट ये एकदम कर सकते हो, बहुत लोग करते भी है। एंड इट्स अ फन एक्टिविटी ऑल्सो। ऐसा है नहीं कि कोई जॉब कर रहे हो तुम उसमें, यू आर जस्ट एंजॉयिंग इट। ग्रेट। चलो, it was great meeting you all. It's a long road ahead. एक स्टार्ट है अभी तो, उस तरह से देखा जाए तो।
एक नया स्टार्ट है। एंड ये जो आप लोगों ने ये पढ़ा, आई एम श्योर इनमें से बहुत सारी चीजें आपको वहां पे भी दिखेगी लगते हुए। वहां पे इवन मेंटल फ्रेमवर्क, जो ये प्रेशर झेलने का जो है ना, इट्स गोइंग टू बी अ प्रेशराइज्ड जॉब, डोंट हैव एनी कॉम्स अबाउट इट, राइट? ओके। Yes. तो प्रेशर वाला जॉब होगा, और सारे जॉब में प्रेशर होते हैं। जो बोलते हैं इस जॉब में प्रेशर है, दूसरे जॉब में प्रेशर नहीं है, यू नो, उत्सव अभी 9 साल प्राइवेट में काम करके आ रहा है, उससे पूछ लेना। कोई जॉब ऐसा नहीं है जिसमें प्रेशर नहीं है और पैसा है। ओके, अगर है तो बता दो, हम भी उसके लिए अप्लाई कर देंगे, लेकिन होता नहीं है, ऐसा कोई नहीं जॉब होता है। बट आई थिंक इफ यू आर अ सोल्यूशन ओरिएंटेड पर्सन, and that's what these exams teach you, you Yes. definitely enjoy this life, because management life, a life of a management professional is enjoying, it's an enjoyable experience जब हम लोग सोल्यूशन की तरफ हम लोग उनते हैं। प्रॉब्लम लेके तो पूरी दुनिया ही रोती रहती है, राइट? सोल्यूशन लेके बात कुछ ही लोग करते हैं, और उनमें से आप लोग कुछ होंगे। सो इट हैज बीन अ ग्रेट thing to have interact with you. All the best for your life, for your future, for your career, right? Thank you, sir. Thank you. और Thank you. Thank you, sir. आगे और ऊंचाइयों पे आप लोग पहुंचिए। That's what I would wish for you. Thanks a lot. Bye bye. Thank you, sir. Thank you. Bye.